Good morning, Oscarians. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. Class 6. How are you, students? I hope you all are taking good care of yourself. So today we are just continue the chapter number the chapter number 5 of geography. So what is the name of this chapter? Rims of the earth. What is the name of this chapter? Rims of the earth. So students, we have already read about the lithosphere. Got it? We have already read about the lithosphere. And tell me, what is that lithosphere? Beta, lithosphere refers to the hard and rocky surface of the earth. Basically it stems from the word litho word is a Latin word. Okay, litho क्या है? एक Latin word है which means rock. Okay, so and it has a hardy mass on a top surface. This rocky mass has a mineral, soil, stone. The land we live all part of lithosphere, यानी कि जिस लैंड पे हम लोग रहते हैं इसी को हम lithosphere कहते हैं. Got it बच्चे? So we have already read about the continents. Tell me students, what is that continents? Continents क्या होते हैं? So बेटा, the large land masses that we see, a large land masses जो हम देखते हैं above the sea level, that is called a continents. And beta, how many continents are there? 7. How many continents are there? 7. So the first one according to the size, that is Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and the last one is Australia. So beta, in a last class we have already read about the Asia and Africa. So which is the largest continent? Asia is the largest continent and it is also the most densely populated continent. यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम कहें according to that population, सबसे ज़्यादा population कहाँ रहती है? That is in Asia. And the world highest mountain range in the world called Himalayas is also lies in Asia. And the highest peak of world, that is Mount Everest, which is in Nepal, it is also lies in Asia. And the second one is Africa. Africa is the second largest continent in the world. Okay, और बेसिकली बेटा दिस इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, ये सिर्फ इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों लाइंस पास होती हैं. ठीक है, हैव यू सी दिस? अफ्रीका इज़ देयर. सो दिस इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पर इक्वेटर की लाइन भी लाई होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑल्सो. So and the very famous river and the longest river, that is the Nile river is also in Africa. And the largest dry desert, that is Sahara desert, which is also lie in Africa. ये हम already सब पुरानी classes में पढ़ चुके हैं. Okay, so in today's class we are reading about the third continent, that is North America. What is the third continent? So the North America is the third largest continent in the world. It is surrounded by, बेटा see this map. According to map आपको अच्छा समझ आएगा. So this is the third largest continent. कौन सा है? North America. And it is surrounded by the Pacific Ocean in the west. इसके west side में कौन सा ocean है? See this in picture, Pacific Ocean. And in the north side it is in Atlantic Ocean. Okay, north side west side में that is Pacific Ocean and north side में Atlantic Ocean. It connected South America. See, this is the South America and this is North America. So it is connected South America by a narrow strip. छोटी सी strip से see, छोटी सी strip से ये connect हो रहा है. that
द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा. दिस इज द नैरो लैंड. ये छोटी सी लैंड दिख रही है, ये इससे बेटा कनेक्टेड है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करती है. दैट इज इस्थमस ऑफ पनामा. द लार्ज पोर्शन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इन नॉर्थ remain under snow for a large part of year. यानी कि इसका जो नॉर्थ पार्ट है सॉरी, द नॉर्थ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट आर कवर्ड विद द स्नो. पूरे साल ये मोस्ट दिस एरिया किससे कवर्ड रहता है? स्नो से. गॉट इट बच्चे? सो दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिकाज मैप. ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है. दिस इज़ वन एशिया एंड नाउ साउथ अमेरिका. एंड ये साउथ अमेरिका से किससे कनेक्टेड हो रहा है? इस्थमस ऑफ पनामा. बेटा एक्चुअली इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम अबाउट अ पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको कोई वर्ड में प्रॉब्लम आती है, यू हैव टू यूज़ अ डिक्शनरी. डिक्शनरी यूज़ करो, उसमें उसका मीनिंग फाइंड आउट करो. इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी, जस्ट टाइप ऑन गूगल व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है? सो वो आपको हिंदी में भी मीनिंग दिखाएगा, इंग्लिश में भी मीनिंग दिखाएगा, इट विल गिव यू अ वीडियोज़ ऑल्सो, और बहुत सारी वीडियोज़ भी दिखाएगा इससे रिलेटेड. सो इट विल बी बेटर कि आप वहाँ पे भी चेक करो. गॉट इट बच्चे? सो नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका. अभी हमने कौन सा पढ़ा था? नॉर्थ अमेरिका. नाउ द टर्म इज साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. मोस्ट ऑफ लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. बेटा सी, साउथ अमेरिका ज़्यादातर पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है? साउथ में. दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ द साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट पार्ट कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फीयर में. ओके. इट हैज़ अ पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. इसके भी वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन है. एंड द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट. और ईस्ट पार्ट में क्या है? अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन. नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में क्या है? पैसिफिक ओशन. एंड इधर साइड में, ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन. द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड एंडीज माउंटेन. सी दिस, ये आपको पार्ट दिख रहा है बेटा? सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस, ये माउंटेन की चेन यहाँ पर आपको कहाँ मिलेंगी? एंडीज माउंटेन रेंज. एंडीज माउंटेन्स लाइज इन द वेस्ट साइड. कौन सी साइड पर लाई कर रहा है ये? वेस्ट साइड पर. एंड अगर हम साउथ में देखें तो साउथ अमेरिका ऑल्सो हैड अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर. टेल मी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर. Which is the world largest river? Yes, you are totally correct. Amazon River. Which is the world largest river? Amazon River. बेटा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर थी. वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? Amazon. Amazon River which runs from Andes Mountain, यानी कि एंडीज माउंटेन से होती हुई वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन में ये जाती है. ओके, दैट इज अ Amazon River. What is the river name? Amazon River. और I'll tell you the Amazon River. इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत घने फॉरेस्ट है. यहाँ से निकल के ये इधर जाती है. दिस इज द Amazon River बेटा. सो नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज अंटार्कटिका. द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका. द होल कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ स्नो. सी दिस बेटा इन अ मैप. दिस इज अंटार्कटिका. दिस इज द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. सारा वाइट वाइट दिख रहा है आपको ये. द होल कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ स्नो. यानी कि मोटी स्नो की लेयर से ये बना हुआ है. एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट एंड द फ्रोजन कॉन्टिनेंट. जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर बहुत सारी थिक स्नो है, बर्फ़ है, इसीलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. एंड फ्रोज़न कॉन्टिनेंट, फ्रोज़न मीन्स जमा हुआ,
फ्रोजन मीन्स जमा हुआ कॉन्टिनेंट भी कहते हैं बेटा. इट हैज़ अ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम ठंडा कोल्ड क्लाइमेट है. एंड सो इट इज़ नॉट इनहैबिटेटेड, यानी कि यहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा ठंड है. बट द साइंटिस्ट ऑफ द वेरियस कॉन्टिनेंट हैज़ इस्टेब्लिश रिसर्च सेंटर. यहाँ पर आपको रिसर्च सेंटर्स मिल जाएंगे. यहाँ पर इंडिया के भी, इंडिया हैज़ अ 2 रिसर्च सेंटर जहाँ से रिसर्च होती है, कैसे किस तरीके से पोल्स काम करते हैं, इक्वेटर पे कैसा काम है, ये सारी चीज़ें हर कंट्री ने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं. इंडिया के भी 2 रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पे. द फर्स्ट वन इज़ दक्षिण गंगोत्री एंड द अनदर वन इज़ मैत्री. दीज आर द, I'm just blinking that point. These are the research center of India. देखो IN लिखा हुआ है इंडिया. जैसे हेली है, बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पर रिसर्च सेंटर है. हेली है यूके का, ठीक है, साउथ और की आइलैंड यूके. सो दीज आर द रिसर्च सेंटर ऑफ द कंट्रीज़. सो इंडिया का कहाँ है? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. Tell me Maitri and Dakshin Gangotri. These are the two research center of India. So now the another one is Europe. Europe is the 6th largest continent. It has a, see in this beta map. This is the map of Europe. Europe is the 6th largest continent. It has the Arctic Ocean in the north. नॉर्थ में क्या है इसके? आर्कटिक ओशन है. एंड द वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन. इज द वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन. एंड इन द ईस्ट साइड इज द यूराल माउंटेन. हैव यू सीन दिस? These are the Ural Mountains ranges which separate continent to Asia. बेटा अगर ये माउंटेन नहीं होता, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इस साइड में एशिया है, ठीक है. अगर आप देखें सी इन दिस एशिया एंड यूरोप, ये जो लाइन बनी हुई है, दीज आर द यूराल माउंटेन्स. यहाँ पर यूराल माउंटेन्स हैं जो इंडिया एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करते हैं, बिल्कुल अलग करते हैं, ठीक है. और द साउथ इज़ अ मेडिटेरियन सी विच इज़ सेपरेट फ्रॉम कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. और साउथ में इसके कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी, जो कि किससे सेपरेट कर रहा है? अफ्रीका से. यानी कि एक साइड में इसके एशिया है एंड अनदर साइड में अफ्रीका है. यूरोप हैज़ मैनी स्मॉल कंट्रीज़ एंड हैज़ 2 सीज. यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ है और आपको 2 सीज देखने को मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज़ ब्लैक सी. व्हाट इज़ दैट नेम ऑफ दिस सी? ब्लैक सी. ओके, ब्लैक सी. एंड अनदर वन इज़ कैस्पियन सी. ब्लैक सी एंड अनदर वन इज़, दिस इज़ द ब्लैक सी एंड अनदर वन इज़ कैस्पियन सी, ठीक है. विच इज़ सराउंडेड बाय द लैंड मास हैज़, दीज आर कॉल्ड द लैंड लॉक्ड सी. लैंड लॉक्ड सी मतलब इन सी को लैंड ने लॉक्ड किया हुआ है. दैट इज़ वाई कॉल्ड अ लैंड लॉक्ड सी. ठीक है बेटा. नाउ द एल्प आर द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑफ यूरोप. यूरोप का हाइएस्ट माउंटेन का नाम क्या है? एल्प. What is that highest mountain of Europe? That is Alps. Okay, this is the Alps. Blink हो रहा है आपको यहाँ पे? Alps. Now the last one is Australia. Australia is the smallest continent. And which is the largest continent? Yes, Asia is the largest continent. And which is the smallest continent? That is Australia. It is entirely in the southern hemisphere. और ये कहाँ पे lie कर रहा है? See in this. Where it is lie? It is lie in the southern hemisphere. Okay. It is the Pacific Ocean in the east. See this.
पैसिफिक ओशन कहाँ पर है, इसके ईस्ट साइड में है. एंड it has a Pacific Ocean in east and the Indian Ocean in the west. Pacific Ocean east में है, Indian Ocean west में है. It is surrounded by ocean from all the sides. यानी कि आपने देखा इसके साथ कोई कंट्री टच नहीं हो रही, पूरे साइड से इसको किसने घेरा हुआ है, ओशियन एंड सी ने. एंड द लार्ज लैंड मास, यानी कि जो लार्ज लैंड मार्क विच इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ऑफ वाटर, ऑल साइड्स ऑफ वाटर, क्या कहते हैं उसे, यस, आइलैंड. यानी कि अ लार्ज लैंड पीस विच इज सराउंडेड बाय ऑल साइड्स फ्रॉम वाटर, दैट इज अ आइलैंड, उसे हम आइलैंड कहते हैं. सो इट इज सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. तो बेटा ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द आइलैंड कॉन्टिनेंट. यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी है. ऑस्ट्रेलिया एक सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है और एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी है. क्यों आइलैंड कॉन्टिनेंट है, बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स. इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो कि दूसरे कंट्रीज से अलग होते हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग होंगे. सो बेटा दीज आर द लेट्स चेक. सो ऑल द लेट्स चेक आई एम मेंशन हेयर ओनली, तो यू कैन डू इन योर नोटबुक. Name the three rims of the earth. The answer one is lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Which hemisphere has more of land mass? कहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंड मास आपको दिखता है? Which hemisphere? Northern hemisphere. Name the largest continent. Asia. Name the highest peak of the world and name the country which is located. तो highest mountain peak is Mount Everest and where it is located? In Nepal. Name the continent which the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and the equator passes through. तो कौन सा कॉन्टिनेंट है वो? अफ्रीका. अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर लाइन पास थ्रू होती है. इन विच कॉन्टिनेंट इन सहारा डेजर्ट लोकेटेड? The answer is Africa. So beta, this question answers you have to do in your notebook and it is very important to understand this chapter. So you can watch this video thrice. 3 से 4 बार बेटा वीडियो देखो. It is very very important and do your work on time. Okay? Thank you so much students.